Hello students, today I'll teach you graphs of some basic functions. Okay, so graphs of some basic function includes y equals to x, y equals to x square, y equals to x cube, y equals to mod x, y equals to e raised power x, y raised power ln x, etc. So one by one I will tell you how to draw these graphs. So come to first graph, y equals to x. So I think we have already studied that firstly we form a table. In a table, we put the values of x and y. So suppose if we have to draw the graph of y equals to x, then we will form a table in xy, put some value of x, suppose minus 3. The value of y will be minus 3. Okay? Value of x is minus 2, value of y is minus 2, value of x is minus 1, value of y is minus 1, 0 पे 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Means y is equals to x. So hence, if we have to draw the graph, then we have to interpolate all the points on xy graph. This is x, this is y. Where is origin? Origin is here at this location. Clear? So x equals to minus 3, y equals to minus 3. This will come as this. Minus 1 point is here, minus 1, minus 1, minus 2, minus 2, minus 3, minus 3. Okay? Alright? Okay. Here 1 is 1, 1, 1. Because 0, 0 is already shown in this graph. This one is called origin. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Okay? These are the graphs. These are the points showing y equals to x. So y equals to x is, this is called identity function. This is called identity function. Okay? Now, is it clear? Any doubt? On the x-axis, we locate all the points minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. And on y-axis, we locate minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. This is the way. So, this is the graph of y equals to x. Okay? Now come to second graph. Second graph is that of y is equals to x square. In this case, if we form a table, then this will come as x, y is equals to x square. X is 1, y will be 1, x is 2, y will be 4, x is 3, y will be 9. For negative, minus 1, 1, minus 2, value of y will be 4, minus 3, value of
y will be plus 9. Okay, so in this case for x y axis, so y equals to x square. इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे, x और y में एक टेबल बनाएंगे। x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1। जब 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 4। 3 होगी तो 9, -1 पे 1, -2 पे 4, -3 पे 9। इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके का निकल के आएगा। ये है ग्राफ y equals to x square. It is also called parabola opening upwards. ऑरिजिन कहाँ पे, ये आपका ऑरिजिन K1 इस तरफ कितना आएगा, -1, ये -2, ये +2, ये 3, -3, ये 4 आएगा, 9 आएगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ पैराबोला का चलेगा। ओके, नाउ कम टू द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x³। y इक्वल्स टू x³, टेबल हम फॉर्म करेंगे इसकी। x y and y equals to x³। -3 पे कितना आएगा, -27, -2 पे कितना आएगा, -8, -1 पे -1, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 8, 3 पे 27। ओके, दिस इज एक्स वाई। अगर हम लोग इस ग्राफ को देखें तो ऐसे आएगा। ओके, 0 0, 1 0, this is 0 1, this is 2 0, this is 0 8। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ये, नेगेटिव में -1 0, this will be 0, -1, -2 0, 0, -6। क्लियर? तो x की वैल्यू और y की वैल्यू में हमको देखना है कि कैसे x की वैल्यू कम बढ़ रही है बट y की वैल्यू क्यूब टाइम्स बढ़ रही है, तो इसलिए ग्राफ ऐसा आएगा। ओके, नाउ now come to y equals to mod x, means इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन
और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो x इक्वल्स टू -1। इसमें क्या है कि हम लोग x को अगर -1 रखा तो y की वैल्यू कितनी रहेगी, मॉड ऑफ -1 मीन्स +1। x को -2 रखा तो y क्या रहा, माइनस मॉड ऑफ -2 मीन्स 2। x को 2 रखा तो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 मीन्स 2। x इक्वल्स टू 3 रखा तो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ 3 मीन्स 3। ओके, तो इसमें आप देखिए, आप नेगेटिव वैल्यू अंदर रखें या पॉजिटिव वैल्यू, फाइनली बाहर कौन सी वैल्यू आएगी, उसका पॉजिटिव, उसका मॉड आएगा, मॉडस वैल्यू। तो इसका ग्राफ आपका निकल के आता है कुछ वी शेप में आता है, दो लाइंस होती हैं, ये है लाइन y इक्वल्स टू x, ये लाइन है y इक्वल्स टू -x, x y 0 0 1 0, this one is 0 1, this one is -1 0 2 0 0 2 -2 0 वी शेप। इसका मतलब ये जो एंगल होगा ना इसका, ये दिस एंगल विल बी 45 डिग्री एंड ये एंगल भी कितना होगा, दिस एंगल विल आल्सो बी 45 डिग्री। क्लियर? तो इस टाइप से y इक्वल्स टू मॉड x एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को हम लोग कर सकते हैं। तो ये है। अब आइए हम लोग आते हैं अनदर फंक्शन दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन means y equals to e raised to the power x. E is called exponential constant. Its value comes out to be equals to 2.78 approximate. Okay? अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठीक से देखें, अगर सीट अपडेट करने पे क्या आएगा, तो ये ऐसे चलेगा। केवल फॉर्म किया x और e की पावर x इक्वल्स टू y। इसके लिए x को अगर हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, e आएगी। x को अगर 2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, e स्क्वायर। 3 रखते हैं तो e की पावर 3 एक्सेट्रा, ऐसे चलेगा। ओके, अगर इस ग्राफ को हम लोग XY सिस्टम में अगर लिखें तो ग्राफ ऐसा जाएगा, x y 0 0, this is 0, 1, minus infinity plus infinity। ओके, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। इसमें एक्सपोनेंशियली मीन्स बहुत ही फास्ट इंक्रीज करता है, इसलिए ये ग्राफ देखिए, ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी की ओर, एक्स एक्सिस इसकी एसिम्पटोट का काम कर रही है, एसिम्पटोट का काम कर रही है। ओके, एसिम्पटोट मीन्स टेंजेंट एट इन्फिनिटी, टेंजेंट एट इन्फिनिटी। दिस वन इज asymptote is tangent at infinity। Clear? So this is exponential function. Now exponential function के बाद में आता है logarithmic function।
लॉग फंक्शन, क्योंकि हम लोगों ने 10th क्लास में जो लॉग पढ़ा है वो लॉग बेस 10 होता है, बट यहाँ पे हमें नेचुरल लॉग लेके चलना है। तो y इक्वल्स टू log x बेस ई, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ln x भी लिख देते हैं। तो इसका जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा आता है, ग्राफ कम्स लाइक दिस, x y 0 0, this one is 1 0, this is y, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। नाउ ये जो y एक्सिस है एक इसका काम कर रही है एसिम्पटोट का, एसिम्पटोट मीन्स टेंजेंट एट इन्फिनिटी टू द ग्राफ y इक्वल्स टू ln x। क्यों, इसमें हम लोग देखते हैं जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बहुत ही फास्ट इंक्रीज करता है, बट लॉग ln फंक्शन में, नेचुरल लॉग का x फंक्शन में ये बहुत ही जल्दी खा जाएगा इसको, मीन्स स्लो बढ़ेगा। तो x y 1 पे y 0, 2 पे ln 2, 3 पे ln 3, 4 पे ln 4, इस तरीके से ये होके चलता है। ओके, नाउ अब हमें इनका सिंपल एक्सपोनेंशियल का क्या था, e की पावर x था, ln का कितना हो गया log x बेस e। ओके, हमको क्या करना है अब, y इक्वल्स टू e की पावर x का ग्राफ ड्रॉ करना है। y इक्वल्स टू a की पावर x, यहाँ पे a के दो केस बनेंगे, a की एक वैल्यू हो सकती है 0 से 1 के बीच में, दूसरा a की वैल्यू कितनी हो सकती है 1 से बड़ी। तो इन दोनों को हमें ड्रॉ करके देखना है। तो a की वैल्यू जब 1 से छोटी हो, a is in between 0 and 1, then the graph comes like this. Okay, this one is the case for a between 0 and 1, but case number 2 is this graph is for a greater than 1। ये इस केस में ग्राफ ऐसा होगा। दोनों का क्या है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस है, y एक्सिस के अबाउट बोथ आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। y इक्वल्स टू a की पावर x when a is between 0 and 1 and when a is greater than 1। okay, अब इनको हमें कंपेयर करना है, जैसे हमें कंपैरिजन करना है तो y इक्वल्स टू सपोज 2 की पावर x है, y इज इक्वल टू 3 की पावर x है, y इज इक्वल टू 4 की पावर x है। तो इन वैल्यूज में क्या है, y इक्वल टू 2 की पावर x का मतलब x 2 की पावर x में x 1 पे 2 आएगा, 2 पे 4 आएगा, 3 पे 8 आएगा। ओके, 3 की पावर x क्या है, x
3 की पावर x, x1 पे 3, 2 पे 9, 3 पे 27। तो इसका एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा होता था? लाइक दिस, ये है, ये ग्राफ है सपोज 2 की पावर x का, ओके, 0,1। अब 3 की पावर x का ग्राफ देखिए, 1 पे इसकी वैल्यू 3 आएगी, यहाँ पे 1 पे x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। 1 पे इसकी वैल्यू आ रही 2, अगले पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3, ओके। इस 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 पे 2 की पावर x क्या वैल्यू देगा? 4 देगा, जबकि 3 की पावर x क्या वैल्यू देगा? 9, ओके। तो 2, 3, 4, 9। तो इसका मतलब जो कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो उसके ग्राफ्स कैसे आएंगे? ये हो गया 2 की पावर x का, दिस इज ग्राफ ऑफ 2 की पावर x। ये ग्राफ किसका हो गया? 3 की पावर x। फिर और इसके बीच में आ जाए तो ये ग्राफ होगा 4 की पावर x का। तो ये इस तरीके से कंपेयर होंगे। तो इस तरीके से ग्राफ को हमें ध्यान में रखना है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे काम करेगा। बट ये तो है a ग्रेटर देन 1 के लिए, बट a अगर लेस देन 1 हो, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 हो, तब उस केस में क्या होगा ये भी आपको बता देते हैं। तो हमें लगता है कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, अब तक समझ में आ रहा होगा, ओके। a अगर 0 से 1 के बीच में है, मीन्स a को आप 1/3 ले लो, 1/2 ले लो, 1/4। तो यहाँ पे अब ग्राफ ऐसे चलेगा। तो मैंने अभी बताया था कि एज बिटवीन 0 एंड 1 वैल्यू ग्राफ will be like this. This is x, this is y. This point is 0,1. Suppose ये है 1/2 की पावर x का। अब 1/3 की पावर x का क्या होगा? ये ग्राफ निकल के आएगा ऐसे, like this, 1/3 raised to the power x. One by 4 raised to the power x. समझ में आ रहा होगा? क्लियर? ओके, फाइन। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऑफ कंपैरिजंस। Now we come to y equals to log x base a. First case is a between 0 and 1. Second one is a greater than 1. Okay? तब इसको कैसे करेंगे ये हम आपको बताते हैं। a between 0 and 1, a greater than 1, ये कैसे होगा? हमने आपको बताया था कि ln x का ग्राफ कैसे निकल के आता है, ये ऐसे निकल के आता है, log x बेस e। ओके, अब देखिए ये ग्राफ होगा log
x बेस 2। इसको रख के हम देख सकते हैं, रख के कंपेरिजन करें, x इक्वल्स टू 2 पे तो log 2 अपॉन log e, यहाँ से क्या निकल गएगा, log 2 अपॉन log 2। इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 से कम होगी। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ ऐसे न करके ऊपर आएगा, ऐसे निकल के आएगा। तो दिस वन इज y इज इक्वल टू log x बेस 2। अगला ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा होगा, y इक्वल टू log x बेस 3। फाइन, ओके। नाउ log base 1 by 2 x log base 1 by 3 x, इन ग्राफ को कंपेयर करने के लिए हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। अभी ग्राफ का शेप तो हमें पता है, पर ये नहीं पता है कि कंपैरिजन कैसे होगा। तो शेप हमको ये मालूम पड़ गया, मान लिया कि ये है log x बेस 1 by 2। अब यहाँ पे 2,0 ये हो गया 1,0, तो 2,0 का मतलब log x बेस हाफ ये है। तो 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एट x इक्वल्स टू 2, दिस विल गिव अस log 2 अपॉन log 2 मीन्स -1। ओके, x इक्वल्स टू 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, log 2 अपॉन माइनस log 3, दैट इज -1 से और लेस होगा, -1 से लेस होगा, तो इसका मतलब और छोटी आएगी, तो इसका मतलब ये ग्राफ आपका ऐसा निकल के आएगा यू। तो दिस वन इज ग्राफ ऑफ दिस। सो अब तक तो हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और मॉडस फंक्शन, ये मेन फंक्शन से ये तो कंप्लीट हो गए। अब हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, वो क्या है, वो हम लोग देखेंगे। स्टेप फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। So y equals to g of x. It is, definition is that bracket x is greatest integer less than or equal to x, greatest integer less than or equal to x। क्लियर। तो यहाँ पे ये एक्चुअली क्या बता रहा है कि सपोज किया हमें गिफ ऑफ 2.1 देखना है, तो इसके लिए पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक नंबर लाइन आपने ड्रॉ कर लिया। ओके, 0 1 2 -1 -2 3 -3। 2.1 कहाँ पे आएगा, ये है आपका 2.1। इसका गिफ्ट का मतलब इससे जस्ट पहले या इसी के बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर
लेस देन और इक्वल्स टू x, ये होगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि सबसे बड़ा इंटीजर इसके बराबर या इससे छोटा कौन सा है, इसके बराबर तो है नहीं कोई इंटीजर, इससे छोटा ही है, वो क्या है 2, x इक्वल्स टू 2। अब देखिए -1.9 इसका गिफ्ट कितना आएगा, तो आप पहले इस पॉइंट को लोकेट करिए, -1.9 कहाँ पे आएगा, -1.9, ओके। अब इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर कितना आ जाएगा, -2, ओके। ओके, नाउ गिव ऑफ -0.1, -0.1 कहाँ पे आएगा, -0.1 ये, इससे जस्ट पहले वाला कितना आएगा, -1, ओके। तो इस तरीके से इसको हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, इसको हम नाम से ही जैसा कि मालूम होता है कि स्टेप फंक्शन इसको कहा जाता है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, जैसा कि नाम से ही मालूम होता है कि ये स्टेप फंक्शन है। स्टेप मीन सीढ़ियाँ, जैसी सीढ़ियाँ चलती हैं वैसे ही इसका ग्राफ चलता है। तो वो है आपका x y, this one is the case, this one is the case, this one is the case, 0 1 2 3, -1 -2, -1 -2 1 2। तो ये कैसा चल रहा है, स्टेप फंक्शन, जैसे सीढ़ियाँ चलती है ना, सीढ़ियाँ ऊपर, एक राइट तो एक अप, एक राइट तो एक अप। और इसमें ये एरो और डॉट क्या होता है, डॉट का मतलब होता है इंक्लूडेड, और एरो का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूडेड, क्लियर। तो ये है आपका स्टेप फंक्शन का ग्राफ, ओके। फिर से कुछ वैल्यू देखते हैं, सपोज आपकी वैल्यू 7.99, तो ऐसा नहीं करना कि इसको अप्रोक्सीमेट करके आप इसको 8 के बराबर नहीं रख सकते, क्लियर। ये तो नहीं रहेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, गिव मीन्स 7। तो ये ग्राफ को आपको सही से लेके चलना है, देखना। अब आते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, that is like this, ओके। तो कोई भी नंबर को हम क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल पार्ट and this is called फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट वाला तो स्टेप फंक्शन तो हमने आपको बताया अभी, गिफ ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिफ ऑफ एक्स, ये तो हमें पता है, ये हमको निकालना है। तो सपोज क्या x इक्वल्स टू 2.19 है, ओके। तो 2.19 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको हमें करके बताना है। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू गिफ ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, दैट इज 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू 2.19। So fractional part of x equals to 2.19 minus 2
that is 0.19. So this is fractional part of x equals to 0.19. तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, इसको हमें याद रखना है। एक होता है इंटीग्रल पार्ट, एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसका हम ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ कैसे आता है? इट्स ग्राफ कम्स लाइक दिस। 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3. Dot means included, arrow means excluded. Clear? So this is fractional part of x. So okay, for today it is okay. Thank you.